myself Vijay. Welcome you all in Biology at your fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing respiration. We have discussed the various steps of the respiration. We have discussed anaerobic and aerobic respiration. Anaerobic is the respiration which occur in the absence of oxygen. When there is no O2 availability, then some organism, and in aerobic organism like us are human muscle cells, they can work under the condition where the oxygen is not present. While in aerobic respiration, there is the oxygen availability is there. We have studied glycolysis is the single step in case of anaerobic respiration, while in aerobic respiration 4 steps are there: glycolysis, then oxidative decarboxylation, and Krebs cycle and ETS. Today we are going to discuss the anaerobic respiration which led to the process of fermentation. Very important process, fermentation. You might have studied it. हमने पढ़ा है इससे पहले fermentation के बारे में, ठीक है. बेकर्स प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, fermentation का ही रिजल्ट है बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है fermentation, and it is basically nothing, it is the anaerobic respiration. So today we are going to study anaerobic respiration and fermentation. As we all know, the anaerobic respiration have a single step, and it is glycolysis. Glycolysis. Name itself suggesting, मैंने बोला है आपको कि वायु में नाम खुद ही बता देते हैं कि वो प्रोसेस है क्या. The glyco term, the word, it mean, glyco mean carbohydrate or glucose is the carbohydrate here. जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इस प्रोसेस का वो ग्लूकोज है. ग्लूकोज the food, and the word lysis means splitting. देखिए मैंने पहले भी कहा है, respiration is a catabolic process in which the respiratory substrate, which is in this case is glucose. Respiratory surface एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसे तोड़ा जाएगा किस लिए? To obtain ATP. Because the ultimate function of the respiration, whether the anaerobic respiration or the aerobic respiration, it is the ultimate goal or ultimate function of the respiration is production of the ATP. तो ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा for ATP release. And we also have discussed that this anaerobic respiration, it have a single step, glycolysis. And in anaerobic respiration there is the release of, I am going to tell you, there is a release of 2 ATP molecule. Basically I can say net gain of ATP. केवल मात्र 2 ही मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में बन पाते हैं, जबकि इसके अगर मैं कॉन्ट्रारी देखूं, एरोबिक रेस्पिरेशन है. इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज द नेट गेन ऑफ, मैं इसके कॉन्ट्रारी बोल रहा हूं आपको कि अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 36 to 38 ATP molecules as a net gain will be there. एरोबिक में 2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं, एरोबिक में वो 36 और 38 है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एटीपी बनती है, एरोबिक में ज्यादा बनती है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड,
एक प्रश्न आपके दिमाग में भी कौन रहा होगा, दौड़ रहा होगा, वो क्या कि ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाएगा और कहां कहां कैसे एनर्जी एटीपी बनती होगी, और व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन इज बेसिकली, ये फर्मेंटेशन क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस डिस्कस। याद रखें, अभी आप पूरे के पूरे प्रोसेस को फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय, इस पे हाउ टू लर्न दिस ग्लाइकोलिसिस विद इन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में आप कैसे लर्न कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस तो आपको चाहिए पूरे प्रोसेस की, लेकिन क्या ट्रिक्स हैं, नेमोनिक्स दिए हैं मैंने आपके लिए कुछ एक, वहां पे इजी टू रिमेंबर के जो ट्रिक्स हैं वो दिए हैं वहां पे, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द ग्लाइकोलिसिस। द ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सरफेस हियर माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपके साथ बेसिक प्रोसेस किए हैं फोटोसिंथेसिस C3 साइकिल से पहले। काइंडली रिवाइज दोस बेसिक प्रोसेसेस हियर बिकॉज इट इज सिमिलर। मैंने C3 साइकिल में ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी किया था, अब आप C3 साइकिल को और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सी हियर ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड यू नो दैट ग्लूकोज इज अ molecule having 6 carbon. One molecule of glucose it have 6 carbon. एक मॉलिक्यूल लेके हम चलेंगे, हम देखेंगे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी बनती है। जो मैंने बताया 2 एटीपी बनती है, कैसे बनती है वो देखने का विषय होगा। 6 कार्बन, मैं एक बार सबके कार्बन नंबर सेटिस्फाई करा दूं आपको। यू नो दिस इज द ग्लूकोज, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना, ग्लूकोज की ही फॉस्फोराइलेशन से बनेगा। ये भी 6 कार्बन का एक कंपाउंड है। फ्रक्टोज इज आल्सो 6 कार्बन, फ्रक्टोज इज आल्सो 6 कार्बन। ग्लिसरॉल्डिहाइड, सी हियर इट्स अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल बेटा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इट इज आल्सो एन 3 कार्बन मॉलिक्यूल बेटा। बाइफॉस्फो अलग बात है, पर कंपाउंड इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये भी 3 कार्बन है बेटा। ग्लिसरिक एसिड अगेन अ 3 कार्बन, ग्लिसरिक एसिड अगेन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, देन ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन होता है, अगेन ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीपी, मैं आपको बता दूं इट इज आल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पाइरुवेट इज आल्सो एन 3 कार्बन कंपाउंड बेसिकली। सो अगर हम देखते हैं इस प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस को, आप देखें कि पहले वो लीनियर लाइन है, उसके बाद उसकी बाइफर्केशन हुई है। लीनियर लाइन जो अपर लाइन है उसमें सारे के सारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे याद रख लीजिए। और जो बाइफर्केशन के बाद जितने भी कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर 3 कार्बन। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इंटरमीडिएट्स हैं, आप इन्हें मोनोसैकेराइड्स में जाके देख लें। सी हियर नाउ, सो दिस इज ऑल आर 6 कार्बन। मैं ऐसे बता दूं आपको कि अगर हमारे पास 6 कार्बन है, उनसे हमने एक मॉलिक्यूल बनता है, तो यहां पे भी 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। ये जो ग्लूकोज है इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड बेटा। 6 कार्बन है ना आपके पास ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 है, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। यस, यू आर सेइंग राइट, इट मस्ट बी 1। हमने किया था डिस्कस इसे। फ्रक्टोज इज आल्सो 6 कार्बन, तो इसके भी कितने बनेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, फ्रक्टोज के भी 1 बनेंगे। और अब एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। ग्लूकोज से हमें कुछ याद करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अभी मैं प्रोसेस को करा रहा हूं, इसके इजी ट्रिक्स कैसे याद रखने की, कौन कौन से मॉलिक्यूल कहां पे आएंगे वो भी आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, वो आप मेरे जो YouTube चैनल पे मैंने अपने पे क्या डाला हुआ है, बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स, आपके पास इसके वीडियो के बाद एक लिंक आएगा और पहले भी लिंक आता है, आप उसको सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन, यू विल गेट मोर एंड मोर नोटिफिकेशन। आप वहां पे विद इन 3 मिनट्स आपको ये सारे सबस्ट्रेट याद होंगे, विद इन 3 मिनट्स सारे एंजाइम्स याद होंगे, विद इन 3 मिनट्स सभी प्रोसेसेस के नाम आपको याद होंगे। ओके, सी नाउ बेटा, यहां पे देखा हमने करना क्या होता है, यू हैव टू डू इट। आप दिन में कम से कम 2 बार इस साइकिल को लिखेंगे।
कैसे लिखेंगे देखिए, इट इज ग्लूकोज, आप रफली लिखेंगे बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्रक्टोज 1,6 डाई और बाई फॉस्फेट। ओके, आप अपने लिए रिमेंबर करेंगे ऐसे, ये स्प्लिट हो जाता है, देखिए मुझे याद है 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, यस, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिस 1,3 डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, आइसोमराइजेशन इज देयर, 3 कार्बन 3 कार्बन। ओके, मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस, पर मैं बोल रहा हूं कि आपने इसमें आप डरिए मत कि कैसे आपको याद होगा। मैं नेमोनिक्स भी दूंगा, मैं इजी ट्रिक्स भी दूंगा जो वीडियो आपके पास है, और ऐसे बता दे रहा हूं। इसके बाद देखिए कुछ नहीं, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, देन 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, देन पाइरुवेट। अगर मुझे याद हो सकती है, मैं भी आपकी तरह एक आदमी हूं, तो आपको भी बेटा इसलिए याद हो जाएगी। बस इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट इट फॉर 2 टाइम्स फॉर 7 डेज, 7 दिनों तक बेटा, 1 हफ्ते तक आप इसे 2 बार लिखिए डेली, ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेमोनिक्स के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जो लिंक है, जो वीडियो है, उसको जरूर देखें। नाउ सी, तो ऐसे याद हो जाता है। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, सी करेंगे, देखिए बेटा क्या होगा, ग्लूकोज विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमें कुछ नहीं भी करना, अभी तो याद करना, ग्लूकोज विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैंने तभी लिखा था कि आपके पास यहां साइकिल में है, मैंने तभी रफली बताया आपको कैसे करना है। ग्लूकोज विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 phosphate will form fructose 1,6 biphosphate. Now it will split. अब splitting is the process. Splitting step है, टूट गया वो देखो, 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है बेटा, मैं सर्कल में मॉलिक्यूल्स को लिख रहा हूं। जब वो टूटेगा तो वो 3 कार्बन के, क्योंकि 6 ही कार्बन है ना, और हमने कितने कार्बन के बनाने, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनने हैं, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, 2 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, यस। हमारे पास कुल 6 कार्बन है, तो 3-3 कार्बन के जो 2 कंपाउंड्स हैं उनके एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ, देखिए आप ध्यान से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसराइड विल फॉर्म एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट विल बी फॉर्म्ड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट विल गेट फॉर्म्ड। ओके, नाउ दिस इज 4th स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या देखा, ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, सेकंड स्टेप में देखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, थर्ड स्टेप में क्या देखा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाया, फिर वो टूट गया। मैं अभी तक स्टेप्स आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूं। देखिए, ग्लूकोज में कोई फॉस्फेट नहीं है, हमने देखा कि इसमें क्या डिफरेंस आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट आ गया 6th पोजीशन पे, इट मींस addition of phosphate is there, and I have told you earlier by in the lecture which is concerned with the basic processes, biochemical processes, उसमें बताया मैंने कि अगर कहीं भी phosphate ऐड होता है उसका मतलब है ATP must be involved and the process must be phosphorylation। मैंने लिखा है बच्चों, यहां पे देखो आप, first step is phosphorylation, is it clear? Okay, and enzyme here is hexokinase। कैसे एंजाइम याद करने में, इसकी भी नेमोनिक्स और इजी ट्रिक्स आपको दूंगा उस लेक्चर में, आप देखें जरूर उसको। दिस इज हेक्सोकाइनेस। सो ग्लूकोज बाय यूजिंग एटीपी इन द प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयन एज कोफैक्टर, इट विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप कैसे लिखेंगे पहले स्टेप को, ग्लाइकोलिसिस का मैं आपको बता दूं कि पेपर में लिखना बड़ा इजी है, आप पेपरों के लिए ना डरें। आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, इट इज फॉस्फोराइलेशन बेटा, है ना, लिख दिया आपने, हेडिंग दे दिया। क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। देखिए करना क्या होता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट एंजाइम और जो हमने कंपाउंड यूज किए उनका नाम सबके लिखना है आपने। तो कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट in the presence of enzyme कौन सा, हेक्सोकाइनेस using
ATP and magnesium ion. Okay, here it is, magnesium ion is required. Mg2 positive, magnesium ion is required. कहां कहां जरूरत होती है मैग्नीशियम की, मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसे याद रख लीजिए, मैग्नीशियम कहां यूज होंगे, मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, उसमें याद हो जाएंगे, पर अभी फर्स्ट में याद रखें। ऐसे लिख लेंगे, सेकंड को भी ऐसे लिखना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर आइसोमर, सो द प्रोसेस मस्ट बी आइसोमराइजेशन। प्रोसेस क्या है, आइसोमराइजेशन। ये दोनों ही हेक्सोजीज हैं, हेक्सोज है, 6 कार्बन वाले हैं, इसलिए, और साथ में इनके क्या है, फॉस्फेट लगा हुआ है, तो हम लिख रहे हैं एंजाइम का नाम फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज। बहुत इजी है बेटा। नाउ द फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप इज आइसोमराइजेशन। आप लिख लेंगे, बुक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से कंसल्ट करें, बट आप अपने आप लिखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सो द फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। इन फॉस्फोराइलेशन glucose will form glucose 6 phosphate. In second step isomerization, glucose 6 phosphate will form the fructose 6 phosphate. In the third step आप देख रहे हैं fructose 6 phosphate में एक phosphate है, fructose 1,6 biphosphate, दूसरा phosphate फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुआ, छठी पे तो पहले था, 6 पे तो था, और फर्स्ट पे भी हो चुका है, तो there must be the use of ATP and process this phosphorylation. Third step is phosphorylation, my dear friends. Here what happened, क्या हो रहा है, fructose 6 phosphate will form fructose 1,6 biphosphate using one ATP molecule in the presence of enzyme phosphofructokinase and magnesium ion. Isomerization also require the magnesium ion. So see here, magnesium ion they are required in the first 3 steps. अभी तक हमने क्या देखा, पहले, दूसरे और जो अपर है उनमें 3 में, फर्स्ट 3 स्टेप्स में मैग्नीशियम आयन यूज हुए। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। फोर्थ है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, और इसमें जो एंजाइम लगेगा वो एल्डोलेस। सिंपल क्या होगा, फोर्थ है स्टेप, फोर्थ स्टेप के 2 सब स्टेप है, फोर्थ है स्प्लिटिंग, फोर्थ बी इज आइसोमराइजेशन, तब कंप्लीट हुआ फोर्थ। देखिए फोर्थ ए में स्प्लिटिंग हुआ, एंजाइम इज एल्डोलेस माय डियर फ्रेंड्स, हम लिखेंगे fructose 1,6 biphosphate got split in the presence of aldolase enzyme to form one molecule of 3-phosphoglyceraldehyde and one molecule of dihydroxyacetone 3-phosphate। हो गया फोर्थ बी स्टेप। आइसोमराइजेशन हो रहा है, दोनों आइसोमर है, अभी 3 कार्बन का है, अभी 3 कार्बन का है, आइसोमर है। सो आइसोमराइजेशन इज द प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, 3-phosphoglyceraldehyde, or I can say the one molecule of dihydroxyacetone 3-phosphate will get isomerized to form 3-phosphoglyceraldehyde। ये इसमें आइसोमराइज हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था, फोर्थ स्टेप में एक मॉलिक्यूल 3-phosphoglyceraldehyde का बना था और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-phosphate का बना था, और अब क्या हो गया, एक और मॉलिक्यूल इससे आइसोमराइज होके इसका बन जाएगा 3-phosphoglyceraldehyde का। और अब हमारे पास कुल कितने मॉलिक्यूल होंगे 3-phosphoglyceraldehyde के, आफ्टर आइसोमराइजेशन 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। एक एक करके, पहले एक फिर दूसरा, ऐसे यूज होते हैं। नाउ पर मैं इकट्ठे ही लिख दूंगा दोनों को। वैसे आइडियली तो होगा कि 1 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde will first change to the 1,3 biphospoglyceraldehyde। देखिए यहां 3-phosphoglyceraldehyde की थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है, यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे एक और फॉस्फेट आ गया, बाय यूजिंग द साइटोप्लाज्मिक H3PO4, नॉट यूजिंग हियर द ATP। मैंने बोला था फॉस्फोराइलेशन 2 तरीके से होती है, एक साइटोप्लाज्मिक H3PO4 भी है। सो अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे जो आइसोमराइजेशन हुई इसके एंजाइम का नाम फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज है, क्योंकि दोनों ही ट्राइओज शुगर है। ठीक है, इस स्टेप को देखिए आप, इट इज 5th A and 5th B। 5th A and 5th B, this 5th step is combinedly called oxidative phosphorylation। एक जगह ऑक्सीडेशन होगा और एक जगह फॉस्फोराइलेशन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी हैव स्टडीड वेरी क्लियरली ड्यूरिंग दिस लेक्चर, द लेक्चर विच इज डीलिंग विद द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, किया है, डिटेल में किया बेटा, उसको जरूर पढ़े आप। यहां देखें 3-phosphoglyceraldehyde by it will get phosphorylated using cytoplasmic H3PO4 है ना,
to form 1,3-biphospoglyceraldehyde. Then 1,3-biphospoglyceraldehyde, it get what? Oxidized. क्योंकि NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव बना रहा है, ये रिडक्शन हुआ. अगर एक तरफ रिडक्शन होता है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन होता है. तो मैं लिख रहा हूं 1,3-biphospoglyceraldehyde, it will get oxidized to form 1,3-biphospoglyceric acid. 1,3-biphospoglyceric acid और ग्लिसरेट भी कहते हैं. इक एसिड, मैं बता दूं आपको, जो इक एसिड फिक्स होता है वो इट इज इक्वल टू 8. तो अगर मैं ग्लिसरिक एसिड लिख रहा हूं तो मैं इसे ग्लिसरेट भी लिख सकता हूं. इज इट क्लियर? नाउ सी माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये स्टेप भी कर दिया. एंड दिस इज फिफ्थ स्टेप इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. और एंजाइम का जो नाम होगा वो होगा ग्लिसरॉल. दोनों में ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट. ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन, सो इट इज डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. क्योंकि एक जगह काइनेस एंजाइम भी लग रहा है और एक जगह फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, तो काइनेस लग रहा है और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस लग रहा है. तो हम लिख देंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. फिफ्थ स्टेप इज ओवर. अब यहां पे देखें बेटा, 1,3-biphospoglyceric एसिड है, उसमें से क्या बन रहा है? 3-phosphoglyceric एसिड बन रहा है. मीन टू से जो फर्स्ट पोजीशन का जो फॉस्फेट है वो रिमूव हो गया है. इट मीन दिस इज द रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, सो इट मस्ट बी dephosphorylation. Dephosphorylation should be the process. So the sixth step is dephosphorylation. और यहां पे ADP से ATP, जो फॉस्फेट यहां से रिमूव हुआ वो ADP ने रिसीव किया और ATP बना दिया. तो क्या होगा बेटा? 1,3-biphospoglyceric acid undergo dephosphorylation in the presence of enzyme phosphoglycerate kinase using one molecule of ADP, या I can say rather forming, यहां पे बनी देखो ATP बनानी है ना, बड़ी जरूरी है. फॉर्मिंग ATP, one molecule of ATP for each molecule, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, एक बार में ATP बनाएगा एक, और दूसरी बार में दूसरी ATP बनाएगा. सो यहाँ पे दो ATP मॉलिक्यूल बनेंगे. मैं लिख सकता हूं, I can say that two molecules of 1,3-biphospoglyceric acid, they undergo dephosphorylation in the presence of enzyme, which one? Phosphoglycerate kinase or phosphoglyceric acid kinase, using ADP and magnesium ion. यहां पे बेटा मैग्नीशियम आयन लगेगा, याद रखें आप इसको. यूज होगा कोफैक्टर की तरह. मैग्नीशियम आयन विल बी यूज्ड एज अ कोफैक्टर. ठीक है? टू फॉर्म 3-phosphoglyceric acid. बन गया 3-phosphoglyceric acid. नाउ 3-phosphoglyceric acid वो बना देगा 2-phosphoglyceric acid. हैं दोनों ही ग्लिसरिक एसिड, सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई है. So this step is isomerization. Seventh step is isomerization and the enzyme is phosphoglyceromutase. So we can write down seventh step. 3-phosphoglyceric acid will get isomerized to form 2-phosphoglyceric acid in the presence of enzyme phosphoglyceromutase. Okay, then 2-phosphoglyceric acid, यहां से वाटर रिमूव होगा, सो इट मस्ट बी द डिहाइड्रेशन. देखो वाटर रिमूव हो रहा है तो प्रोसेस होगा डिहाइड्रेशन. ओके, पानी निकल गया ना, तो आई कैन से द प्रोसेस इज डिहाइड्रेशन. एंजाइम इज एनोलेस. ठीक है, हम लिखेंगे 2-phosphoglyceric acid undergo dehydration in the presence of enzyme enolase using magnesium as cofactor to form 2-phosphoenol pyruvate. बन गया 2-phosphoenol pyruvate. इसमें क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है. अब देखें 9th step, 2-phosphoenol pyruvate will form pyruvate. ये क्या बना देगा? पाइरुवेट बना देगा. और पाइरुवेट में कोई फॉस्फेट नहीं है, इसका मतलब डिफॉस्फोराइलेशन हुआ, एटीपी बनेगा. एक मॉलिक्यूल एक बार में, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी बार में. अब आप इस चीज को देख लें. 9th step is dephosphorylation. Here the pyruvate kinase is enzyme. So we can write 2-phosphoenol pyruvate undergo dephosphorylation to form pyruvate, 2 molecule of pyruvate. How many molecules? 2 molecule. यहाँ सारे के सारे कितने होंगे बेटा? 2 molecules will be there because all are 3 carbon. So I can write down 2-phosphoenol pyruvate. It will undergo dephosphorylation to form 2 molecule of pyruvate and 2 molecule of ATP in the presence of enzyme pyruvate kinase. In the step number 9, also the magnesium ion will be used as a cofactor
डाइमेटाइन, एंड हियर इट इज इन द 8th स्टेप आल्सो देयर। ओके, तो याद रखना मैग्नीशियम आयन कहां कहां यूज होंगे? फर्स्ट 3 स्टेप अपर, लास्ट 3 स्टेप पर याद रखें यहां पे लास्ट 3 स्टेप में क्या होगा? लास्ट 3 स्टेप नहीं है, आपको 7 छोड़ना है, 9th 8th 7 छोड़ के 6th, ये थोड़ा सा है। फर्स्ट 3 स्टेप, लास्ट में लास्ट के 2 स्टेप और एक छोड़ के एक और स्टेप, जो 6 स्टेप है, वहां पे मैग्नीशियम आयन यूज होंगे। नाउ दिस इज द पायरुवेट, दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। इफ ऑक्सीजन इज absent, if there is no oxygen, my dear friends, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? फर्मेंटेशन विल occur, फर्मेंटेशन विल occur, एंड लाइक इन ह्यूमन मसल सेल, हमारे मसल सेल में मसल फैटीग हो जाता है। क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि वहां पे जो पायरुवेट है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो पायरुवेट जो है दैट विल, ठीक है, दैट विल विद द हेल्प ऑफ LDH एंजाइम, इट विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। आप देख रहे हैं NADH यूज हुआ या ऑक्सीडेशन होगा तो एक तरह का रिडक्शन हुआ, कन्वर्जन हुआ और वो लैक्टिक एसिड बना देगा, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जमा हो जाएगा। जब एसिड हमारे मसल में होगा तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी, दर्दें होंगी, और उसे ही क्या कहा जाता है? मसल फैटीग। ओके, नाउ इन ईस्ट यूजुअली यूज्ड टू फर्मेंट द प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि यहां पे भी पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। ये जो अल्कोहल फॉर्मिंग फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे भी ईस्ट का यूज या इस तरह के और ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है जो फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्मेंटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, और बेसिकली आई कैन से ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का ही प्रोडक्ट पायरुवेट है, तो ग्लूकोज को वहां पे इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस विद ऑल द प्रोसेस एंड एंजाइम्स। एंड नाउ हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड? सी, ATP कितनी बनी बेटा, आपने ये देखना है। ATP यूज कहां हुई? नेट गेन ऑफ ATP मैं बताऊंगा, नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ, यूज कितनी है देखिएगा। स्टेप नंबर 1 ऐसे करते हैं बेटा यार, स्टेप नंबर 1 पे एक यूज हुई, स्टेप नंबर 3 पे एक यूज हुई। आई कैन राइट डाउन देम इन नेगेटिव, यूज होगी ना वो, नेगेटिव में लिख दिया। और बनी कहां कहां देखिए, स्टेप नंबर 6 में फॉर्म्ड, फॉर्म्ड कहां पे हुई बच्चे देखिए, कहां बनी? स्टेप नंबर 6 में कितनी बनी? 2 + 2 ATP, ओके, 2 बनी। और स्टेप नंबर 9, यहां पे देखिए 9 में भी 2 बनी, 6 में भी 2 बनी और 9 में भी 2 बनी, तो कितना? +2 ATP। तो टोटल कितनी बनी बेटा? नेट गेन कैसे होता है? नेट गेन इज इक्वल टू, वी हैव फाउंड 4, यूज्ड 2, तो द नेट गेन इज 2 ATP। So the net gain of the ATP is 2. This is very important. In glycolysis, only 2 ATP we will get. Okay. So my dear friends, this is the net gain. How to calculate? मैं एक बार आपके साथ देखो जल्दी से इस प्रोसेस को बोलना चाहूंगा, कैसे याद हो जाता है। मैं आपकी तरफ देखूंगा, वहां प्रोसेस से आप देखते जाइए। फर्स्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन स्प्लिट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सीटोन 3 फॉस्फेट। फिर आइसोमराइजेशन हुआ, उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोनिल पायरुवेट, देन पायरुवेट। फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो फर्मेंटेशन करेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, या इस जैसे ऑर्गेनिज्म में इथाइल अल्कोहल इथेनॉल बनेगा बेटा। ये देखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्या देखना है कि कहां कहां एटीपी यूज हुई, कहां बनी। स्टेप नंबर 1 और 3 पे यूज होती है, एक एक एटीपी यूज हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। स्टेप नंबर 6 और 9 पे डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, वहां पे 2 एटीपी 6 पे बना, 2 9 पे बना, इसलिए नेट गेन जो होगा, हमने 4 बनाई, उसमें से 2 यूज कर लिए प्रोसेस में, नेट गेन इज 2 एटीपी। तो ये था ऑक्सीजन की जो अब्सेंस जब होती है तो कैसे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है।
कैसे उससे एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस इज द प्रोसेस विच इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। आप घर में बेटा इसे क्या करेंगे, 2 times यू हैव टू राइट, पहले बिना देखे, पहले 1-2 बार लिख के देख के लिख लो, उसके बाद इसे आप बिना देखे लिखें। और इजी ट्रिक्स और नेमोनिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे YouTube चैनल, जिसका लिंक आपके सामने आ जाएगा, आपने काइंडली इसे कहां देखना है, मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स विद विजय। आपने मेरे साथ इसको सीखना है 3 minutes, इट इज माई चैलेंज टू यू, ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए। विद इन 3 minutes you will get full concept, my dear friends. Thank you. Have a nice day. Meet you in the next class with the next very important topic, that is the aerobic respiration. 36 और 38 ATPs कैसे बनती हैं वो हम सीखेंगे. Till then, bye to all. See you.